temple of thy spirit. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Let me be a holy habitation where your spirit is pleased to dwell. Oh Lord, I long to know your glory. Salt has got many functions. नमक के अपने बहुत से काम होते हैं In many countries where it's very cold और बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सर्दी होती है and during winter they don't get food, और सर्दियों के समय में उन्हें खाना नहीं मिलता है। they use salt to preserve the food for the winter. भोजन वस्तुओं को सर्दियों तक बचा कर रखने के लिए वो नमक का उपयोग करते हैं Because they apply salt to the meat and the vegetables and they dry it, so it will last throughout the cold season. वो मांस को और सब्जियों को नमक लगाकर रखते हैं और उसे सुखाते हैं ताकि सर्दियों तक वो सब कुछ बचकर रह सके। इस तरह वो नमक का उपयोग करते हैं। In the olden days, people used to do trading with salt. They used to use salt as money. और पुराने जमाने में लोग नमक का उपयोग पैसों के जैसे किया करते थे। Salt is very important. नमक बहुत ही महत्वपूर्ण है Of course, you take too much of salt, then you get hypertension. That's what I mean. और निश्चय अगर हम बहुत ज्यादा नमक ले तो हमें हाइपरटेंशन हो सकता है, यही तो मेरा मतलब है। Today's topic I want to talk about is the salt of the covenant. आज के दिन मैं आपको वाचा के नमक के विषय के बारे में बताना चाहता हूँ। God also talks about salt. परमेश्वर भी नमक के बारे में कहता है We will come to that passage. और हम उस वचन को देखने वाले हैं। Salt has two functions. नमक के दो सबसे मुख्य ऐसे काम होते हैं। One thing is it gives flavor to the food you eat. एक बात यह है कि जो भोजन आप करते हैं ये उस भोजन में स्वाद लेकर आता है, वो उसे स्वाद देता है। And the second thing it does, और दूसरा काम जो ये करता है it keeps away corruption and fermentation and decay. और ये तो नाश होना या खराब हो जाना जो है उसे बचा कर रखता है। When we make all these pickles, यानी जब हम ये सारे अचार बनाते हैं we soak it in salt. We put lot of salt to cure that pickle before making it. उस अचार को बनाने के लिए हम बहुत सा नमक डालते हैं ताकि वो काफी समय तक बचा कर रह सके, वो काफी समय तक रह It सकता है, preserves it. वो उसे बचा कर रखता है। We will read a passage from the book of Leviticus chapter 2 verse 11 to 13. लय व्यवस्था अध्याय 2 वचन 11 से वचन 13 तक आइए हम यहाँ पर पढ़ते हैं। No cereal offering that you bring to the Lord shall be made with leaven, for you shall burn no leaven or honey in any offering made by fire to the Lord, for because of their aid to fermentation as symbolic of corruption of the human heart. That is verse 11 and 12. कोई अन्नबलि जिसे तुम यहोवा के लिए चढ़ाओ खमीर मिलाकर बनाया न जाए, तुम कभी हवन में यहोवा के लिए खमीर और मधु न जलाना, तुम इसको पहली उपज का चढ़ावा करके यहोवा के लिए चढ़ाना, पर वे सुखदायी सुगंध के And लिए it says वेदी in the पर next चढ़ाई verse, जाए। every cereal offering you shall season with salt, which is a symbol of preservation. Neither shall you allow the salt of the covenant of your God to be lacking from your cereal offering. With all your offering, you shall offer salt. फिर अपने सब अन्न बलियों को नमकीन बनाना और अपना कोई अन्न बलि अपने परमेश्वर के साथ बांधी हुई वाचा के नमक से रहित होने न देना, अपने सब चढ़ावों के साथ नमक भी चढ़ाना। ये कहता है यहाँ पर, वो कहता है कि अपना कोई अन्न बलि अपने परमेश्वर के साथ बांधी हुई वाचा के नमक से रहित न होने देना, अपने सब चढ़ावों के साथ नमक भी चढ़ाना। God said, do not offer anything without the salt. परमेश्वर ने कहा कि नमक के बिना कोई भी अन्न बलि न चढ़ाना, But he also said, don't offer with leaven or honey. लेकिन उसने ये भी कहा है कि उसमें खमीर और मधु मिलाकर तुम अन्न बलि न चढ़ाना। Why did he say leaven and honey? उसने यहाँ पर खमीर और मधु क्यों कहा है, किस लिए कहा है? Leaven is something which is put into the dough and it spreads throughout the dough and it produces fermentation. और जो खमीर है वो तो आटे में मिलाया जाता है और वो पूरे आटे में फैल जाता है और उसके कारण वो आटा जो है वो फर्मेंट हो जाता है, पूरी तरह से खराब होने लगता है, फूलने Even लगता है। honey, when it's mixed with things, the sweetness causes it to spoil after some time. यहाँ तक कि अगर किसी चीज में मधु या शहद मिलाया जाए तो कुछ समय के बाद में उसकी मिठास के कारण जो वो वस्तु है वो तो सड़ने लगती है। These are symbolic of corruption coming into your life. ये तो दर्शाता है कि आपके जीवन में भ्रष्टता आ रही है, ये उसको दर्शाता है।
Leaven and honey talks of things which will infiltrate your life and defile your life. खमीर और मधु जो है ये तो आपके जीवन में ऐसी कुछ बातें हैं जो आपको खराब करती हैं, अशुद्ध करती हैं, उसके बारे में यहाँ पर बताती है। Jesus said one thing, beware of the leaven of the Pharisees. यीशु ने इस तरह से कहा कि तुम तो फरीसियों के खमीर से सावधान रहना, सचेत रहना। He said that is hypocrisy. और उसने कहा वो तो ढोंग होता है। Hypocrisy is a form of acting. यानी ढोंग तो ऐसा है जिसमें हम कुछ दिखावा करते हैं। You are something else inside and you try to show something else outside. यानी आप तो भीतर में कुछ और होते हैं लेकिन बाहर में कुछ और ही दिखाते हैं। ये तो केवल दिखावा करने के In जैसे the है। Greek, when they talk of an actor, they say, what a hypocrite. He's an actor. और जब भी कोई ग्रीक किसी एक्टर के बारे में कहते हैं तो वो कहते हैं ये कितना बड़ा ढोंगी है, वो तो एक एक्टर है। The word hypocrite means actor. ढोंगी शब्द का मतलब ही एक्टर होता है। इसका बस यही तो अर्थ है। If we are hypocrites, that means we are also acting. अगर हम ढोंगी है इसका मतलब यह है कि हम केवल एक्टिंग कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। We are hiding things in our life and showing something else to the people. हम अपने जीवन में कुछ छिपा कर रखते हैं और कुछ और ही बातें हम लोगों को उनके सामने God दिखाते हैं। hates hypocrisy. परमेश्वर ढोंग से नफरत करता है। He wants us to be open and honest and truthful in all things. वो चाहता है कि हम सारी बातों में बिल्कुल खुले हों और पूरी तरह से ईमानदार हो जाएं। यही परमेश्वर चाहता There है। should not be any underhand dealings in us, hidden sins in us. हमारे जीवन में कभी भी ऐसे टेबल के नीचे से या फिर गुप्त में या फिर ऐसे गुप्त पाप ना हो। So many people hide the sins in their life and they show a righteous outward appearance, but there are hidden sins in their life. बहुत से लोग अपने जीवन में पापों को छिपा कर रखते हैं लेकिन बाहर में केवल धार्मिकता का व्यवहार करते हैं। उनके जीवन में केवल छिपा हुआ पाप And I'm होता not है। just talking about young people. मैं केवल जवानों के बारे में नहीं कह रहा हूँ। Many people nowadays are addicted to horrible things on the internet and the television. इन दिनों में तो बहुत से लोग इंटरनेट और टेलीविजन पर बहुत ही भयानक बातों के आदी हो चुके हैं। वो उसके आदी हो चुके हैं, उन्हें उनकी लत Very लगी bad है। and immoral areas are there in the internet which are addicting young people. देखिए इंटरनेट में ऐसे कुछ साइट्स हैं जो कि जवान लोगों को पूरी तरह से बुरी लतों के आदी कर देते हैं। Not only young people, many older people and elderly people also are addicted to those things. केवल जवान लोग ही नहीं लेकिन बहुत से वयस्क लोग जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी इन सारी बातों के आदी हो चुके हैं। वो इनकी लत में पड़े हुए हैं। And many people go to church and try to act very righteous, but they are having secret sins in their life. और बहुत से लोग जो है वो तो चर्च में जाकर धार्मिकता का व्यवहार दिखाते हैं लेकिन उनके खुद के जीवन में बहुत से ऐसे गुप्त पाप बने रहते हैं। There is an interesting parable. It's found in the book of Matthew chapter 13. We won't read that. I'll just give you the gist. एक बहुत ही दिलचस्प ऐसा दृष्टांत है जो मत्ती 13 में पाया जाता है। हम इस पूरे वचन को पढ़ेंगे तो नहीं लेकिन यहाँ पर मैं आपको सार बताता हूँ। It says a woman took 3 measures of meal, that means flour. ये कहता है कि स्त्री ने 3 सेर आटा लिया, यानी उसने 3 सेर And आटा she लिया put lemon in it. और उसने उसमें थोड़ा सा खमीर मिलाया And all the 3 measures got leavened. और 3 सेर जो आटा है वो पूरी तरह से खमीर बन गया। It's interesting why the parable mentions 3 measures of meal. ये तो सच में बहुत ही दिलचस्प है कि क्यों इस दृष्टांत में 3 सेर आटा के बारे में यहाँ पर हमें बताया गया। ये दिलचस्प बात See, है। when we allow sin to remain in our life, जब हम पाप को अपने जीवन में ऐसे बसे रहने देते हैं, when we allow the leaven of hypocrisy to enter our lives, जब हम ढोंग के इस खमीर को अपने जीवन में प्रवेश करने देते हैं, our 3 areas of our life are affected. तो हमारे जीवन के 3 ऐसे क्षेत्र हैं जिस पर इसका असर पड़ता है। Man is made of your body, your soul, and your spirit. मनुष्य जो है वो तो शरीर, प्राण और आत्मा ऐसे 3 भागों से बना हुआ है। When you allow hypocrisy to enter your life, it will spoil all the 3 areas. जब आप ढोंग को अपने जीवन में आने देते हैं तो ये आपके जीवन के तीनों क्षेत्रों को बर्बाद कर देता है। ये इन तीनों भागों को प्रभावित कर देता है। In the book of 1 Thessalonians chapter 5 and verse 23, पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 वचन 23 में हम इस तरह से यहाँ पर इस बाइबल में देख सकते हैं। the very God of peace sanctify you wholly, and I pray God that your whole spirit, your soul, and your body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे।
इस तरह से ये वचन हमें बताता है। So here it mentions your whole body, your soul and your spirit. यहाँ पर आपके पूरे देह, आपके प्राण और आपकी आत्मा के बारे में बताया गया So है। whenever you allow sin and hypocrisy into your life, it will permeate all these three areas and defile you completely. जब भी आप अपने जीवन में इन पापों को आने देते हैं तो निश्चय ही आपके जीवन के इन तीनों भागों में प्रवेश करता है और वो इन तीनों भागों को बर्बाद कर देता On the है। other hand, salt keeps away corruption. और दूसरी ओर देखा जाए तो जो नमक है वो तो भ्रष्टता को दूर रखता है, नाश को दूर रखता है। So let us see which areas of our life we need to have salt in it. तो आइए देखते हैं कि हमारे जीवन के किस क्षेत्र में हमें नमक की जरूरत है। The first area is to have salt in your own life and in your relationship with others. सबसे पहला क्षेत्र है जहां पर आपके खुद के जीवन में और दूसरों के साथ के आपके संबंध में आपके पास में नमक होना चाहिए। The Bible says in Mark chapter 9 and verse 49 to 50. बाइबल मरकुस अध्याय 9 वचन 49 और वचन 50 में इस तरह से कहती है, Everyone shall be salted with fire. Salt is good, but if the salt has lost its saltiness, how can you restore the saltiness to it? Have salt in yourself and be at peace. Live in harmony one with another. क्योंकि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। नमक अच्छा है, पर यदि नमक का स्वाद जाता रहे तो उसे किससे नमकीन करेंगे? अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप से रहो। इस तरह ये कहता है। See, it talks about two things. Have salt in yourself ये दो बातें कहता है कि अपने में नमक रखो and be at peace one with another. और एक दूसरे से यानी आपस में मेल मिलाप से रहो। It says everyone will be salted with fire. ये कहता है कि हर एक आग से नमकीन किया जाएगा। इस तरह से वचन कहता है। Salt does one thing we already mentioned. It keeps away corruption from us. और नमक एक काम करता है जिसके बारे में हमने बताया, वो भ्रष्टता को हमसे दूर ही रखता है। Fire does something. It burns away all the dead and useless things in your life. और आग जो काम करती वो ये है कि वो आपके जीवन में सारी मरी हुई चीजें और जो बेकार की चीजें हैं उसे जलाकर खत्म कर देती है। You need to have this thing in your heart. आपके दिल में ये होना ही चाहिए। Salt means we live in righteousness and holiness. नमक का मतलब ये है कि हम धार्मिकता में और पवित्रता में अपना जीवन जीते जाएं। We don't allow sin to remain in our lives. हमें अपने जीवन में पाप को रहने नहीं देना है। Jesus said one thing. यीशु ने एक बात कही है, If your eye causes you to sin, cut it out, he said. अगर तुम्हारी आंखों के कारण तुम पाप करते हो तो उसे निकाल दो। इस तरह से यीशु ने हमें बताया Better है। to enter heaven with one eye than having two eyes and going to hell. दो आंखें रखकर नरक में जाने के बजाय अच्छा है कि एक आंख के साथ में स्वर्ग में जाएं। If your hand causes you to sin, cut off that hand. अगर तुम्हारे हाथ के कारण तुम पाप करते हो तो अपने हाथ को काट दो। इस तरह से यीशु ने हमें बताया Better है। to go to heaven with one hand than having two and going to hell. दो हाथ रखकर नरक में जाने से अच्छा है कि हम एक हाथ के साथ स्वर्ग में जाएं। If your leg causes you to sin, cut off that leg. और अगर तुम्हारा पैर तुम्हें पाप करने लगाए तो तुम अपने पैर को काट दो। इस तरह से In other यीशु ने words, कहा। what he's saying is be ruthless with sin. Don't allow it to remain in your life. दूसरे शब्दों में वो यही कह रहा है कि पाप के साथ में कठोर हो जाए और उसे अपने जीवन में बिल्कुल रहने न दें, उसे अपने जीवन से निकाल दे। Maintain that salt in your life. अपने जीवन में इस नमक को बनाए रखें। Purity. शुद्धता। Keep away all things which will defile you. जो बातें आपको अशुद्ध करती हैं उन सारी बातों को आप दूर रखिए। Never allow things to remain in your life. कोई भी बातों को अपने जीवन में ऐसे ही रहने न दें। Don't have hidden sins in your life. अपने जीवन में गुप्त पाप न रखें। The second thing is be at peace one with another. और दूसरी बात यह है कि एक दूसरे के साथ में मेल मिलाप से रहें। In other words, have salt in your relationship with others also. दूसरे शब्दों में अपने संबंधों में यानी दूसरों के साथ में भी आप नमक को बनाए In the book रखें। of Romans chapter 14 and verse 19, रोमियो अध्याय 14 वचन 19 में हम इस तरह से देखते हैं, we pursue the things that make for peace and the building up of one another. इसलिए हम उन बातों में लगे रहें जिससे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। इस तरह से कहता है। We have to go after the things which will make for peace between brothers and between other people. हमें उन बातों के पीछे चलना है जो दूसरे लोगों के बीच में और भाइयों के बीच में शांति और मेल मिलाप को बनाए That is रखे। your salt in your relationships. और यही तो आपके संबंधों में
नमक के जैसा होता The है। word of God says, परमेश्वर का वचन कहता blessed are है, the peacemakers, for they shall be called the children of God. धन्य है जो शांति और मेल मिलाप लाते हैं, क्योंकि उन्हें परमेश्वर की संतान कहा जाएगा। Unfortunately, most of us, we put petrol into the fire. और देखा जाए तो सच में हम में से बहुत से लोग तो आग में मानो पेट्रोल डालने का काम करते चले जाते हैं, जिससे आग और भड़क जाती है। Instead of bringing peace and solving the problem, we add to the problem. इसके बजाय कि शांति लाए और समस्या हल करे, उसके बजाय हम समस्याओं को बढ़ाते चले जाते हैं। How many people have misunderstandings with people and they don't set right with people? बहुत से ऐसे लोग हैं जो दूसरे लोगों के बारे में गलत धारणा रखते हैं और उनके साथ में कभी मेल मिलाप नहीं करते हैं, And they keep that anger and resentment in their heart throughout their life. और पूरे जीवन भर वो उस व्यक्ति के बारे में क्रोध और तिरस्कार बनाकर रखते हैं। And yet we say, oh, we serve the living God. और फिर भी हम कहते हैं कि हम तो जीवित परमेश्वर की सेवा करते हैं, Oh, we worship Him with very sweet words. और हम बहुत ही मधुर शब्दों से परमेश्वर की आराधना करते But we हैं, don't forgive the brother who has hurt us. लेकिन जिस भाई ने हमें चोट पहुंचाई है हम उसे क्षमा नहीं करते। We don't maintain the salt in our relationship. हम अपने संबंधों में इस नमक को बनाकर नहीं रखते हैं। Jesus said one thing. यीशु ने एक बात You कही, come to the altar अगर तुम वेदी के पास में आते हो and you bring your gift for an offering. और तुम भेंट के लिए अपनी चीजें वहां पर लेकर आते हो, And if you remember और तुम्हें स्मरण आता है that your brother has something against you, कि तुम्हारे भाई के मन में तुम्हारे विरुद्ध में कुछ तो भी है, he said, leave your gift at the altar. तो वो कहता है कि वेदी के पास में ही अपने उस बलिदान को Go छोड़ दे and be reconciled with your brother. और पहले जाकर अपने भाई से मेल मिलाप कर ले, Then come and offer your gift. और फिर आकर अपनी भेंट को चढ़ाना। If we don't do that, अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, if we keep that misunderstanding and anger in our heart, अगर हम उस तरह की गलतफहमी और उस क्रोध को अपने दिल में ऐसे बनाकर when we रखते come to हैं offer our sacrifices to God, our praises, God won't hear us. और हम परमेश्वर के पास में आकर अपने स्तुति और अपने बलिदान चढ़ाते हैं, तो फिर परमेश्वर हमारी नहीं सुनेगा, Because we are not obeying the word of God. क्योंकि हम परमेश्वर के वचन की आज्ञा नहीं मान रहे हैं। It's very important that when we study the word, we obey the word of God. ये बहुत ही जरूरी है कि जब हम वचन का अध्ययन करते हैं तो हम परमेश्वर के वचन की आज्ञा मानते चले If you जाएं। just read it and don't apply it, you're a foolish man. अगर आप इसे केवल पढ़ते हैं, इसका उपयोग नहीं करते हैं, तो आप एक मूर्ख व्यक्ति के जैसे होते हैं। Jesus said, यीशु ने कहा, any man who hears my words and does not do them जो कोई व्यक्ति मेरे वचन को सुनता है और उसके अनुसार नहीं is करता like a है, man who built his house on the sand. तो ये तो उस व्यक्ति के जैसा है जिसने रेत के ऊपर अपना घर बनाया है। When the storm comes and the wind blows, और जब तूफान आता है, जब हवा चलती है, आंधी बहती है, their house will fall. तब उसका घर गिर जाता है Great will be the destruction. और उसका विनाश बहुत ही बड़ा होगा। But whoever hears my words and obeys them, लेकिन जो भी मेरे वचन को सुनता है और उसकी आज्ञा मानता है, he is like a man who built his house on the rock. तो वो उस व्यक्ति के जैसे जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। When the storm comes and the wind blows, और जब आंधी आती है, तूफान आता है, जब हवा बहती है, that house will not fall because it is founded on the rock. तो वो घर नहीं गिरेगा, क्योंकि वो तो चट्टान के ऊपर बना है, वो नहीं गिरेगा। So if we read the word of God and study the word of God, यानी अगर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उसका अध्ययन करते चले जाते we हैं, need to apply the word in our lives, in our day-to-day life. तो हमें अपने जीवन में, प्रतिदिन के जीवन में वचन का उपयोग करते चले जाना है। It's only when we walk in obedience, ये तो केवल तब है जब हम आज्ञाकारिता में चलते that जाते is हैं, when the salt is maintained in your life. तभी तो ये नमक आपके जीवन में बने रहता है। That is how you'll be able to maintain salt in your relationships with others. और इसी तरह से दूसरों के साथ में आप इस नमक को बनाए रखते हैं। Titus, it says, the man of God should not strive and fight with people. और तीतुस इस तरह से कहता है कि परमेश्वर का जो जन है वो दूसरों के साथ में लड़ाई झगड़ा न करें। Some people have a nature of fighting nature. कुछ लोगों का स्वभाव ही बस ऐसे लड़ाई झगड़े का स्वभाव होता है। Easily they get very angry. बहुत ही आसानी से उन्हें गुस्सा आ जाता है And in that anger, they'll speak so many things. और उस क्रोध में वो ऐसी बहुत सी बातें कह बैठते हैं And they destroy relationships. और वो जो संबंध है उन्हें ही नाश कर देते हैं। But as we read, Paul says, do the things which will edify one another. जैसे हमने पढ़ा कि पौलुस ने कहा कि एक दूसरे की उन्नति के लिए तुम काम करते चले जाओ। Things which will build up the other person. ऐसी बातें जो कि दूसरों को उभारते चली जाए, उन्नति दे। That is how we maintain the salt in our relationship with others. और इसी तरह से दूसरों के साथ में हमारे संबंधों में हम नमक को बनाए When we रखते हैं। always seek the good of the other person. हमेशा दूसरे व्यक्ति की भलाई के बारे में सोचते जाएं। When we don't just seek our own things, but the good of the others. जब हम अपनी बातों के बारे में नहीं खोजते लेकिन दूसरों की भलाई को ढूंढते रहते हैं। Jesus himself gave his life for us. देखिए, यीशु ने स्वयं हमारे लिए अपना जीवन दे दिया है, How much more we should lay down our life for the others. तो हमें दूसरों के लिए भी अपना जीवन देना क्यों नहीं चाहिए?
When Jesus washed the feet of his disciples the night before he was crucified, और यीशु ने क्रूसीकरण के पहले वाली रात को खुद अपने चेलों के पैर धोए थे। he said, your Lord and Master have done this to you. उसने कहा, मैं तुम्हारा प्रभु, मैं तुम्हारा स्वामी, मैंने खुद तुम्हारे साथ ऐसा Do किया also है, the same one to another. तुम भी एक दूसरे के साथ में ऐसा ही किया करो। Remember, याद रखिए, in our relationships, we have to maintain the salt, हमारे संबंधों में हमें नमक को बनाए रखना है। the flavor of Jesus Christ, यीशु मसीह का जो स्वाद है उसे बनाकर रखना है। the beauty of Jesus Christ. यीशु मसीह की सुंदरता को बनाए रखना है। Jesus said one thing, यीशु ने एक बात कही by है, this shall all men know that you are my disciples, इसके द्वारा सारे मनुष्य जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो, by the love you have one for another. तुमने एक दूसरे के लिए जो प्रेम रखा है उसके कारण। So if we as believers fight with each other and have enmity with each other, अगर हम विश्वासी एक दूसरे से लड़ते चले जाए और एक दूसरे के साथ में शत्रुता रखते जाए, then how can the world know that we are the disciples of तो Jesus? फिर संसार कैसे जानेगा कि हम तो यीशु मसीह के चेले हैं। We have to learn one thing. हमें एक बात सीखनी होगी। Many of us, instead of being witnesses to the world, we are actually spoiling the witness of Christ. हम में से बहुत से लोग संसार के सामने यीशु मसीह की गवाह होने के बजाय हम तो यीशु मसीह की गवाही को बर्बाद करते चले जा रहे हैं। हम उसका अपमान कर रहे हैं Because we don't have that salt in us. क्योंकि हमारे अंदर वो नमक नहीं है। We have anger, हमारे अंदर क्रोध है, we have bitterness, हमारे अंदर कड़वाहट है, unforgiveness. क्षमाहीनता है। Now, Jesus said, if you don't forgive those who sin against you, neither will your heavenly Father forgive you. लेकिन यीशु ने कहा, जो तुम्हारा अपराध करते हैं, अगर तुम उनके अपराधों को क्षमा नहीं करते हो तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। It's very important that you maintain that salt. और ये बहुत ही जरूरी है कि आप उस नमक को बना कर Otherwise, on रखें, the day when we stand before God, क्योंकि जिस दिन आप परमेश्वर के सामने खड़े रहेंगे, you may say, Lord, I've did so many things for you. शायद आप ये कहें कि प्रभु मैंने तेरे लिए बहुत कुछ किया है, I've preached your word. मैंने तेरे वचन का प्रचार किया है, I've given to the poor. मैंने गरीबों को दिया है, I've done so many things. मैंने बहुत कुछ किया है। But Paul says, if you don't have love, whatever you've done is just a waste. लेकिन पौलुस कहता है कि अगर तुम में प्रेम नहीं है तो जो कुछ भी तुमने किया है वो सब बर्बाद हो जाता है। Maintain the salt, the beauty, the love of Jesus in your life. आप उस नमक को, उस सुंदरता को और यीशु मसीह का जो प्रेम है उसे अपने जीवन में बना कर रखिए। Love your brothers and sisters. अपने भाइयों और बहनों से प्रेम रखिए, And love even all those who are not in the faith, also love them with the love of Jesus. और जो लोग विश्वास में नहीं हैं उन सभी लोगों से आप प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से प्रेम रखिए। Don't just love your brothers and sisters and hate the others. No. आप अपने भाइयों और बहनों से प्रेम रखकर दूसरों से नफरत करें, ऐसी बात न करें। Bible says God so loved the world, everyone. बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, उसने सबसे ऐसा प्रेम रखा है Gave his only begotten son. कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। If God loves the world, how much we should also love the अगर world. परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा है तो हमें उससे कितना प्रेम रखना चाहिए। The people who are lost, we should love them. जो लोग खोए हुए हैं उनसे हमें प्रेम रखना है। But let it start with your loving your brothers and sisters who are in the faith. Start with that. लेकिन आइए हम शुरू करें कि विश्वास में जो आपके भाई और बहन हैं उनसे आप प्रेम रखना शुरू कर दें। If our nature is all hard and unforgiving, come to the Lord. He will change your heart. अगर हमारा स्वभाव ऐसा कठोर है, क्षमाहीनता का है, तो निश्चय ही आप अपने पूरे दिल से प्रभु यीशु मसीह के पास में आइए। Whatever you find the weaknesses in your life, bring it to Him and He will change it. आपके जीवन में आप जो भी कमजोरी देखते हैं आप उसे प्रभु के पास में लेकर आए, प्रभु उस कमजोरी को दूर करेगा। It's only He who can transform us. केवल वही है जो हमें बदल सकता है। And as we spend time in the presence of God, और जैसे हम परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताते हैं, as we try to apply the word in our life, और जैसे हम अपने जीवन में वचन का उपयोग करते चले the जाते हैं, Spirit of God will help you to live like that. परमेश्वर का आत्मा हमारी मदद करेगा कि हम इस तरह से जीवन जीते जाएं। Because if you are a child of God, you have the Spirit of God living inside you. क्योंकि अगर आप परमेश्वर की संतान हैं तो परमेश्वर का आत्मा आप में वास करता है, He will allow you to have that salt in your life. और वही है जो आपके जीवन में उस नमक को बनाए रखेगा। And He will guide you in the right path. और सही मार्ग में वही आपका मार्गदर्शन करते चले And He जाएगा, will glorify Jesus in your life. और आप अपने जीवन में यीशु को महिमा देते चले जाएंगे। I want to ask you one thing. मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। We have talked about the salt of the covenant. हमने वाचा के नमक के बारे में यहाँ पर चर्चा की है, We talked about having the flavor of Jesus in our life. और हमने ये भी चर्चा की है कि हम अपने जीवन में यीशु के स्वाद को बनाए रखें। I want to ask you, do you have that flavor in your life? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपके जीवन में ये स्वाद है? Do you know Jesus Christ as your Lord and Savior? क्या आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में जानते हैं?
There is only one way we can have fellowship with God. केवल एक ही तरीका है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के साथ संगति कर सकते हैं। God has made only one way. परमेश्वर ने केवल एक ही मार्ग बनाया है। Human beings have made hundreds and thousands of ways. मनुष्यों ने तो ऐसे सैकड़ों और हजारों मार्ग बनाए हैं, But God has made only one way. लेकिन परमेश्वर ने केवल एक ही मार्ग बनाया है। Bible says God so loved the world that he sent his only begotten son, that whosoever believes in him should not perish but have everlasting life. बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। इस तरह से बाइबल ये If कहती you है। want to come into fellowship with God, अगर आप परमेश्वर के साथ में संगति में आना चाहते you हैं, want the Spirit of God to live inside you, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का आत्मा आप में वास करे, if you want to show the beauty of Christ, God in your life, अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर की और मसीह की सुंदरता को दिखाना चाहते then you हैं, have to accept Jesus Christ into your life. तो आपको अपने जीवन में यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार करना होगा। You have to believe that he died on the cross for your sins. आपको ये विश्वास करना होगा कि वो तो क्रूस पर आपके पापों के लिए मरा। You have to believe that he rose again because he's a son of God. आपको ये विश्वास करना होगा कि वो फिर से जी उठा क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र है। And then you have to ask him to be your Lord and Master. और फिर आपको उससे विनती करना होगा कि वो आपका प्रभु और उद्धारक हो जाए। The minute you take that step, जिस पल आप ये कदम उठाते हैं, when you sincerely turn your heart towards Jesus, और जब आप बड़ी ईमानदारी से अपना दिल प्रभु यीशु मसीह की ओर फेरते हैं, that is the moment when God will reach out and touch your life. और वही तो वो पल होता है जहां पर परमेश्वर आपके जीवन को छू लेता And है। that is the moment he will put his Holy Spirit into your life. और वही तो वो पल होता है जिस समय वो अपनी पवित्र आत्मा आपके जीवन में उंडेल And you will देता have है, the hope that I will go to heaven to be with और God. आपके पास में आशा होती है कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा और मैं परमेश्वर के साथ में रहूंगा। There is only one life. बस एक ही जीवन है, You do not have a second chance. आपके पास दूसरा मौका नहीं है। Make the right step today. आज ही आप सही कदम उठाइए, With a true heart, सच्चे दिल के साथ। God will touch your life. परमेश्वर आपके जीवन को छू He लेगा, will change your life. वो आपके जीवन को बदल He will देगा, give you hope. आपको आशा देगा। I'm going to pray now. मैं अभी आपके लिए प्रार्थना करूंगा And I want you to pray with me. और मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ में प्रार्थना कीजिए। Those of you who have watched and you felt, yes, I need to have this change in my life, you pray with me. जो लोग ये महसूस करते हैं आत्मा सारी सच्चाई में आपकी अगुवाई करते चले जाएगा। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष I will दे। see you next week. आमेन।